Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Yunus and today we are starting new chapter, that is chapter 3, matrix and determinants. Matrix and determinants. So first of all we will define matrix. Matrix is a rectangular array or tabular form of numbers enclosed in pair of brackets is called matrix. Matrix, as you are seeing, A11 first row first column, A12 first row second column, A13 first row third column, A1n first row nth column. Similarly, A21 second row first column, A22 second row second column, A23 second row second column, and A2n second row nth column. Similarly, up to M row one column, M row second column, M row third column, and M row nth column. So matrix order of this matrix is M cross n. First we write number of rows and second we write number of column. So this is called matrix. Matrix are represented by different matrix are represented by capital alphabets A, B, C, and the entries A11, A12, A13, these are called entries, are represented by small alphabets A, B, and C, etc. Next is types of matrix. As you have learned in grade 9, row matrix, a matrix which has only one row. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो is called row matrix. For example, 1, -1, 3, and 4. This matrix has only one row. So column matrix, a matrix which has only one column is called column matrix. The 2, 3, 1, one column, only one column. So rectangular matrix, let M denote row and N denote column. Let me suppose M denote row and N denote column. So if M is not is equal to N, then matrix is called rectangular matrix. अगर आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल ना हो तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ़ m इज इक्वल टू n, जैसे मैंने बताया कि m आपके लिए रो के लिए है और n आपका कॉलम के लिए है. इफ़ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. एज 2, 5, -1, 6, 2 rows 2 column, 2 multiplied by 2, b is equal to 1, 1 rows 1 column, it is also square matrix. इन स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप ये देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं इस तरह अगर लिखूँ A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये जनरल फॉर्म है किसी मैटर को लिखने की. A41, A42, A43, A44, यानी 4 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है. 4 क्रॉस 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल, और इसको कहते हैं हम सेकेंडरी डायगोनल. सो A11, A22, A33, A44 are called entries of principal diagonal, whereas A14, A23, A32, A41 are called entries of secondary diagonal. Entries of secondary diagonals. Next one, diagonal matrix. A square matrix, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के होने के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal must be 0. ये देख लें, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, बाकी सारे 9 डायगोनल आपके 0 हैं. यहाँ देख लें, ये डायगोनल पे आपके 0 नहीं है, बाकी सारे 0 हैं. यहाँ देख लें, ये भी 0 है, सेकंड में 1 है और 3 है, और ये सारे बाकी सारे 0 हैं. अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ तब भी ये डायगोनल होगा, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा. स्केलर मैट्रिक्स.
A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries, यानी principal diagonal entries are same and non-zero. देख रहे हैं आप, for example, k 0 0 0 k 0 and 0 0 k, where k is constant whose value is not is equal to 0 or 1. ना तो उसकी वैल्यू 0 हो ना उसकी वैल्यू 1 हो. फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 0 वैल्यू है तो ये तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी बन जाएगा. सो देयरफॉर उसकी वैल्यू ना तो 0 हो और ना तो 1 हो. ये देख लें A 2 0 0 0 2 0 0 0 2 स्केलर मैट्रिक्स, B आपका 3 0 0 3 आपका स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल पे आपका 3 3 है. अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो ये आपका डायगोनल बन जाएगा. इसी तरह ये भी अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो डायगोनल बन जाएगा. मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बिल्कुल ये डायगोनल की तरह होते हैं. ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 1 1 0. ये देखिए डायगोनल पे आपका 1 1 है, बाकी सारे के सारे 0 हैं. तो ये तो एक तो डायगोनल भी है और दूसरा डायगोनल में ये यूनिटरी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो जिसमें आपके डायगोनल पे 1 1 आ जाए हम उसे आइडेंटिटी कहते हैं. Null or zero matrix, a matrix having all entries or element are 0 is called null matrix or zero matrix. Equal matrix, two matrices of the same order are said to be equal if their corresponding entries are equal. ये देख रहे हैं A है आपके पास A माइनस बी सी डी, इसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंग A है, इसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंग माइनस बी है, सेम एलिमेंट. C करस्पॉन्डिंग C और D करस्पॉन्डिंग D है. तो ऐसे दो मैट्रिक्स को आप कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स. यह है कि हम किन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. वो दो मैट्रिक्स आप ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हों, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं A इज इक्वल 2 3 5 6 और यहाँ पर है B माइनस 2 5 4 9. ये भी आपका 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम. ये भी आपका 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम. अब ये आपस में ऐड हो सकते हैं. अगर एक 2 क्रॉस 2 हो और दूसरा 2 क्रॉस 3 हो तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते. सो 2 माइनस 2 3 प्लस 5 5 प्लस 4 एंड 6 प्लस 9, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0. 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 4 9 एंड 6 प्लस 9 15. ये दोनों मैट्रिक्स आपके ऐड हो गए. नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. किन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for multiplication AB if the number of column of matrix A is equal to the number of row in matrix B. ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. अगर हो देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नॉट. सो आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू आपके पास है फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 एंड 2, यानी फर्स्ट रो 1 रो है और 2 कॉलम्स है. 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है. दूसरा मैट्रिक्स है 2 0 3 1, 2 रोज और 2 कॉलम्स इसका ऑर्डर है. तो ए बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. ये कंडीशन होनी चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. अब दूसरी बात ये आ जाता है कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा. जो रह जाते हैं स्टूडेंट्स आपके ऑर्डर वो आपका होगा आंसर का ऑर्डर, यानी फर्स्ट रो और 2 कॉलम्स आएंगे आपके आंसर में. तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 A और B को. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड को सेकंड से. 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6. फिर आप आ जाएं क्योंकि आगे कोई नहीं है आपका सेकंड रो नहीं है तो आप वापस फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे. फर्स्ट इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 6 8 हो गया और 0 प्लस 2 2 हो गया. ये आपका ए बी प्रोडक्ट आ गया. इसी तरह अगर आप 3 क्रॉस 3 लेंगे
201, 142, 306 और ये 1 माइनस 1 ये 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो आप देख लें 201, 142, 306 ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो आप लेंगे, इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, सेकंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इसी तरह दोबारा आप फर्स्ट रो लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 एंड 1 मल्टीप्लाई -2 -2। इस तरह वही रो लेंगे और थर्ड कॉलम के साथ जब तक पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाता उस रो से, आप रो से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। अब आ जाएं आप सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4 एंड 2 इंटू 1 2। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम जब आएगी 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू -2 4। इसी तरह सेकंड रो जब थर्ड के साथ आएगी तो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू 3 6। अब आ जाएं जी थर्ड रो के साथ। थर्ड रो सेम प्रोसेस आप रिपीट करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, 0 1 0 एंड 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -1 -3, 0 इंटू 3 3 एंड 6 इंटू -2 12। जो आप एलिमेंट चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। तो अब आप देख लें 2 + 1 3, -2 -4 3 7 7 and 2, 6 + 3 9, -15 and 18। This is the product of AB.